नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। शुक्रवार 15 दिसंबर को शाहपुर गेट के सर्वे नंबर 98 पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा था। इस संबंध में केपी न्यूज ने एक न्यूज चलाई थी, जिसके बाद आज इस मामले में एक बड़ा और अहम खुलासा सामने आया है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने बीदर फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ वनाती एमएम आईएफएस से बात की और इस मामले की जानकारी प्राप्त की। असलम खान से बात करते हुए फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में कई खुलासे किए। असलम खान ने सर्वे नंबर 98 के गजट के बारे में पूछा और सर्वे नंबर 98 के सभी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे। बता दें कि शुक्रवार की रात को फॉरेस्ट के अधिकारी शाहपुर गेट पर रात के समय कार्रवाई कर रहे थे, जिसको देखकर रात को कई लोग वहां पर जमा हो गए थे। उन्हें समझाकर लौटाया गया था। इस संबंध में भी फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछा गया, जिस पर फॉरेस्ट डीएफओ ने सर्वे नंबर 98 की गजट नोटिफिकेशन कॉपी और पानी की कॉपी असलम खान को दी और कहा कि लोग भ्रम में हैं। जो सर्वे नंबर 98 को 99 बता रहे हैं, ये लैंड फॉरेस्ट की ओर से एक्वायर्ड की गई है। लोग धोखे में न रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। Actually, survey number 98 in Shahpur, it is included in our Shahpur Reserve Forest notification. Survey number 98 is fully, it is reserve forest and it is already mutated in the name of Karnataka Forest Department. Actually, some people, they are confused with survey number 99. 99 is fully patta land. So, these people, they thought that this 98 is 99. They were in that confusion. So, they have made plots and everything there in our survey number 98. So now we have got the joint survey done, and in the joint survey sketch it is clear that this particular location, this is survey number 98. So this as per this sketch only we have done eviction now. That is, it is proper forest land. How forest department got the gazette of survey number 98? Because people saying survey number 98 before that land is a private land. When? Which year? Which year it was private land? Before 1960. See, 1960s in Bidar, lot of forest has been notified in the gazette. Actually, that time in many of the forest, what has happened, some patta lands also forest department has purchased and they have paid compensation to those people, and later it was included in the gazette notification. So what you are telling, I have to check the records. Like before 1960s, whether this 98 survey number was a patta land or that time it was a government land, that I have to verify. But patta, if it was patta, then forest department might have acquired it. Yeah. How much land did you have in survey number 98? How much land we have? Yes. I'll just get the notification and I'll give it to you. But the entire survey number is forest only. Okay. Yeah. Madam, your officer is working at the night time, 11 o'clock. So people saying this question by our channel, this is a legal process? Yeah, of course. Yeah. See, in Shahpur actually totally 104 acre encroachment we have evicted, and we have taken back the land, we have taken back to department. We have started this process 15 days back itself. So we are doing it since 15 days. It is not like only that day we have come and we have done the work. Since 15 days that work is going on, and that only 4 hours work was there. That was the last part. So our officers actually Gadi, some vehicle, some issue was there, they were telling. So they have just completed the work and they were about to set the Gadi next morning. That's all. Did you notice, ma'am, any kind of notice from purchase that land people? Already actually some houses, already it's been constructed there. Yes. For them already we have issued notice. And at the time of joint survey also we have informed them. Those people, they were also present at this at the time of survey. And that is already court and all, our ACF, he has conducted court, he has passed the order also. Because they don't have any relevant documents. They have documents, but that document is fully of survey number 99. But they are sitting in 98. That is the issue here. Okay, ma'am. Please give me all records of survey number 19 and gazette also. Gazette, yeah, our reserve forest gazette notification, that I will provide you. And 98 RTC is in our name. That also I will give you. दर्शकों, शाहपुर गेट पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से
ये जो इंक्रोचमेंट क्लियर किया जा रहा था 15 दिसंबर को, आज उसी की दूसरी कड़ी है। आज हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोगों के ज़मीनात इन्होंने ख़रीदे थे, प्लॉट्स ख़रीदे थे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से इंक्रोचमेंट क्लियर किया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जनता का असल ये इशू क्या है, ये मुद्दा क्या है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। ये मसला क्या है, असल में इसकी हकीकत क्या है। जनता ये कहती है कि ये सर्वे नंबर 99 है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये सर्वे नंबर 98 के अंतर्गत ये लैंड आती है और उनके पास इसका ऑल रिकॉर्ड है, सभी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। इसी संबंध में आज मैंने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ से आज मैंने मुलाकात की, उनसे बात की। उन्होंने मुझे एक ये इसका सभी जो है रिकॉर्ड उन्होंने मुझे दिया है, गज़ेट नोटिफिकेशन कॉपी, जो ये 1964 की ये गज़ेट नोटिफिकेशन कॉपी है। इसमें इस लैंड के सभी रिकॉर्ड्स है। सर्वे नंबर 98 भी इसमें बता रहा है। टोटल 1400 एकड़ 30 गुंठे लैंड जो है रिजर्व फॉरेस्ट की यहाँ पर शाहपुर गेट में उन्होंने टोटल बता रहे हैं। कई सर्वे नंबर है जो इस लिस्ट में सभी सर्वे नंबर के नाम है। इसमें कौन से सर्वे नंबर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, इसकी डिटेल भी हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे। लेकिन बताना यही है कि ये इशू चल रहा है कि सर्वे नंबर 99 है या 98 है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये 98 है। इसके ऑल रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेरे हाथ में अभी है और एक आरटीसी कॉपी भी उन्होंने मुझे दी है, जिसमें आरटीसी कॉपी में भी उनका नाम बता रहा है कि सर्वे नंबर 98 जो है रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है। लेकिन पब्लिक अभी परेशान है। कई लोगों की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ थी जो अभी ज़िंदगी भर की मेहनत की पूंजी कमाई जमा कर जिन्होंने यहाँ पर ज़मीन ख़रीदी थी, अब वो लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं केपी न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों तक एक और बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पर लैंड खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लॉट कोई परचेस करते हैं या घर खरीदते हैं, 10-20 लाख 50 लाख का अगर आप लोग खर्च करते हैं इस पर, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि एक लीगल एडवाइज़र के पास आपको जाकर इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और इसकी सारी डिटेल मालूम करके, चाहे आप कोई भी लैंड कहीं भी खरीदो, इंडिया में आप कहीं भी अगर लैंड खरीद रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक लीगल एडवाइज़र के पास जाकर उसकी लीगल एडवाइस लेकर उस लैंड के सारे रिकॉर्ड्स निकाल कर ही आपको उस लैंड को ख़रीदना चाहिए। अगर नहीं आपके पास रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि आजकल लैंड ग्रैबर्स भी काफ़ी जो है धोखा दे रहे हैं। कई ऐसे कंप्लेंट्स, कई ऐसे मसले हैं जो न्यूज़ चैनलों में आजकल दिखाई दे रहे हैं कि कई एकड़ों से ज़मीन पर जो गरीब लोग बैठे थे या किसी की कोई डिपार्टमेंट में वो ज़मीन चले जाती है तो फिर वो लोग बर्बाद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों से अच्छा है, ये सभी के लिए ये बात है कि अगर कहीं आप अगर ज़मीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप लीगल एडवाइज़र से मिलिए, उस ज़मीन की पूरी जाँच कीजिए, उसके सभी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के बाद आप ज़मीन खरीदिए। क्योंकि इस तरह का अगर वाक़या हो जाता है तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसमें एक चीज़ ये भी है, लोग ये कह रहे हैं कि ये म्यूनसिपैलिटी को ये टैक्स दे रहे थे और ये इन ज़मीनों में कई ज़मीनों की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। तो अब इसमें कहीं ना कहीं सब रजिस्ट्रार और सीएमसी डिपार्टमेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये टैक्स भी भरते थे और रजिस्ट्री भी हो चुकी है। तो क्या सब रजिस्ट्री ऑफिस को, सीएमसी डिपार्टमेंट को ये पता नहीं था कि ये फॉरेस्ट लैंड है? इन लोगों को भी ये इंस्पेक्शन करना चाहिए था, कर इसका टैक्स वसूल करना चाहिए था। लेकिन मुद्दा यही है कि लोग तो परेशान हो चुके हैं। कई लोगों ने ये भी मुझे कहा है कि वो मिनिस्टर से भी मुलाकात कर चुके हैं। ईश्वर खंडरे के पास कुछ लोग गए थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर है ईश्वर खंडरे जी, उन्होंने भी ये कहा है कि वो साइट पर विज़िट करेंगे, विज़िट करके उनसे बात करेंगे। लेकिन 15 दिसंबर को दोपहर के टाइम यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट का क्लियर चल रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, उसको रोक दिया गया था। लेकिन रात के वक्त वो लोग फिर आए थे, रात को 1 बजे के टाइम, 1 बजे के वक्त मैंने फिर यहाँ पर पहुँचकर फॉरेस्ट ऑफिसर से बात की थी, उनसे भी मुलाकात की और उन्होंने यहाँ पर कई लेडीज़ जो महिलाएं भी जो यहाँ पर आ गई थी रात के 1 बजे के वक्त, उनसे भी फॉरेस्ट ऑफिसर ने बात कर उनको समझा कर यहाँ से भिजाया था। लेकिन ये लोग जो परेशान हुए हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? मसला ये है। और लास्ट में, अंत में तो मैं यही कहूँगा कि न्यायालय, कोर्ट के दरवाजे तो सभी लोगों के लिए खुले हैं। अगर ऐसा लगता है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी ज़मीन चले गई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ये कह रहा है कि ये रिज़र्व फॉरेस्ट है, आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
कोर्ट पे इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं। इसी तरह की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल KP News 24/7। मैं असलम खान, कैमरामैन संतोष कुमार के साथ। धन्यवाद।